Hello and welcome to the first session of business organization. In this session, we were discussing about the nature and scope of a business, and the topic we will be covered, that is introduction, meaning of business, meaning of profession, distinguish between the business and profession, nature of business, scope of business, that is, and the function of business. So these are the few topics which we're going to be discuss in today's session. That is the session 1 of business organization. Before going to start with the topics, with the meanings, with the introduction part of the business, the essential thing is to understand that what is the basic uh, concept for arising the concept like a business organization जैसे concept को लेके आने का एक exact purpose क्या था, या what that book is basically going to state you, what these going slides the session going to state you. बेसिकली अगर बात की जाए तो यस ये हमें बताएंगे हमारे कि एक बिज़नेस क्या होता है। अगर हम लोग जैसे कि एक बिज़नेस स्टार्ट करना, एक बिज़नेस मार्केट के अंदर एंटर करना एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिनारियो होता है, एंड एवरी वन बींग एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर सिनारियो. सो इन दैट कॉन्सेप्ट वाई इट इज़ एसेंशियल, ये क्यों ज़रूरी है मार्केट में, इसकी क्या किस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, आप किस तरीके से इन सबको सेटिस्फाई कर सकते, कैसे बिजनेसेस के अंदर आ सकते हो, क्या इसके स्कोप हैं, किस किस तरीके के बिजनेसेस में आप आ सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली यहाँ डिस्कस किया गया है और हम इन सब चीज़ों के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ह्यूमन लिव इन अ सोसाइटी एंड more practically in the families. To satisfy the wants, man has to work to earn a money for his livings. So yes, this is very obvious कि हम being a human being एक society के अंदर रहते हैं और इस society में रहने के लिए we must earn some money kind of a thing, हमें पैसे कमाने पड़ते हैं. So again the same thing is to earn that particular money हम एक business जैसे concept में आते हैं. So yes, this categories are broadly divided into the two. One is economic activity and another is non-economic activities. Economic activities are more related to your earning profits activities, whereas non-economic activities are more related to the for the benefits of your society. So this is non-economic activity. Now starting with business. Now basically the business is what? Business की अगर जनरल बात करें तो business is an organization. ये एक organization होती है which is engaged in the trade of goods and services, जो किसी भी तरीके की goods and services के अंदर business करने के लिए बनाया जाता है. So in very trade term it is the activity. ये अगर हम trade term में या एक business terms में बात करें तो business वो है जहाँ पर बहुत सारी activities perform की जाती हैं just to raise the value, just to raise the profit. So what is our slide is mentioning, हमारी slide क्या mention कर रही है, हमारी slide बता रही है a business may be defined as an institution organized and operate to provide the goods and services to the society with the objective of earning the profit. बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो कि ऑपरेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को सोसाइटी तक लेकर आने का, जस्ट टू अर्न दी प्रॉफिट. एक आप मार्केट के अंदर हो, ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट. Now according to the FC Hopper, Hoppers का क्या कहना है इसके बिजनेस के बारे में. Business is the whole complex field of a commerce and industry which includes the basic industry, processing and manufacturing industry, and the networks of the ancillary services, distribution, banking, insurance, transportation, and so on, which serves and penetrates the world of a business as a whole. So that means हम ये बोल सकते हैं कि फील्ड ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री वो है जिसके अंदर हम लोग एक इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं. हम प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं. वी प्रॉब्ली कम इन टू दी मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्किंग सेक्टर्स. नेटवर्किंग के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, हम इन सब कंसेप्ट के अंदर आ सकते हैं जस्ट टू राइज दी प्रॉफिट इन फ्रॉम द सोसाइटी.
नाउ व्हाट इज प्रोफेशन? जहाँ हमने बोला कि बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड में डील करती है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस इंडस्ट्री रिलेटेड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, किसी भी तरीके के बिजनेस में, बट येस यू वर रिलेटेड टू दी गुड्स एंड सर्विसेज ताकि आप एक प्रॉफिट अर्न कर सको. तो नाउ अराइजेस व्हाट इज प्रोफेशन. Profession is a kind of an occupation, we can say that. Yes, a profession may be defined as an occupation which involves the rendering of a personal services of a specialized nature. यानी कि ये एक ऐसी ऑक्यूपेशन होती है, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपको हमेशा एक स्पेशलाइज्ड नेचर और स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, बिकॉज यू आर इन दी ऑक्यूपेशन जो आपसे रिलेटेड है, जो आपको फोकस आपको रिप्रेजेंट करता हो. जैसे ऑक्यूपेशन लाइक डॉक्टर, हर एक डॉक्टर अपने आप में अलग होता है, उनकी ट्रीटमेंट टेक्निक्स अलग होती हैं. टीचर्स, हर एक टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है. दिस इज अगेन अ प्रोफेशन. सो प्रोफेशन इज बेसिकली जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड नेचर की ज़रूरत होती है, एंड एट द सेम टाइम you add your values, you add your experiences, you add your touch in that. Yes, another is they collect the professional fees from their client from the services of a render to them. That's very obvious. किसी भी तरीके की अगर आपको सर्विस रेंडर की जाती है तो उसके लिए they will ask for the fees. ना यस एज द बिजनेस एंड प्रोफेशन कॉमनली ये जिन टर्म्स आती हैं कि बिजनेस भी तो वही हुआ कि जब किसी भी तरीके गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं. तो अगर हम बात करते हैं तो टीचर्स अगर ट्यूशन्स चलाते हैं तो वो भी बिजनेस है. सो अगैन देयर इज नो, वो बिजनेस नहीं है, बिकॉज देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ. बिकॉज जो टीचर्स, इफ वी think about the study centers or tuition centers, so they were basically the profession. उनके पास इतनी स्किल्स थी कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, पर्टिकुलर स्पेशलाइज नॉलेज को लेकर कैरी फॉरवर्ड कर सकें. वेयर बिजनेस इज कम्प्लीटली द बिजनेस वन, कि आपकी रिलेटेड टू योर डीलिंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज. तो इन दैट कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देर वॉज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दी बिजनेस एंड प्रोफेशन. हम लोग अब इसके अंदर दो चीज़ें डिस्कस करने वाले, हम लोग कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस और प्रोफेशन कैसे एक दूसरे से अलग है. सो बिजनेस की अगर बात करते हैं तो बिजनेस एंटरप्राइज कम्स इन टू द एग्जिस्टेंस व्हेन द एंटरप्रेन्योर टेक्स अ डिसीजंस टू कैरी ऑन. Professional firms is established by the decision of the professional who hold the certificate of a practice of a professional body. अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस तब शुरू होता है जब एक इंडिविजुअल खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो किसी तरीके के बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा. वेयर एज योर प्रोफेशन इज दोज एरिया, वो एक प्रोफेशन एक ऐसी स्ट्रीम होती है जिसके अंदर यू रिक्वायर्ड सर्टन सर्टिफिकेट फॉर द प्रैक्टिसेस. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उस क्लियरिंग को शुरू करवाने के लिए यू हैव टू टेक सर्टन काइंड ऑफ एन सर्टिफिकेट. तो आपके पास एक सर्टिफिकेट इश्यूज होते हैं जस्ट टू कैरी दैट प्रोफेशनल बॉडीज. नाउ सेकेंड इज द नेचर एंड ऑपरेशंस. नेचर एंड ऑपरेशंस एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है. तो नेचर एंड ऑपरेशन की बात करते हैं तो बिजनेस एंगेज इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आपका जो बिजनेस है वो एक्चुअली एंगेज इन टू दी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई दी ह्यूमन नीड्स. गुड्स के अंदर डीलिंग कर रहा है. बट वेयर एज अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन इज मेनली डील विद दी सर्विसेज एज स्लाइड्स आर मेंशनिंग. The practice of a profession involves the rendering of a personalized services of the specialized nature of a client. So this is what? This is the profession study. Whereas business क्या है, जब आप goods and services के अंदर डील कर रहे हो तो ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत अलग हो गई. आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट से डील कर रहा है आपका बिजनेस. When it comes to services, it is profession. Then motive क्या क्या होता है. सबसे पहला the motivating force behind a business is to earn to satisfy the needs of a society. सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, दिस इज वन ऑफ द मोटिव ऑफ द business. Where comes the professional is expected to be emphasize the service motive. यानी कि जितने भी हमारे सर्विस रिलेटेड मोटिव्स होते हैं, यानी कि अच्छी सर्विस रेंडर प्रोवाइड करवाना, अच्छी टेक्निक्स अपने पास रखना, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इस तरीके की टेक्निक्स में बेसिकली प्रोफेशन डील करता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोफेशन इज मोर रिलेटेड टू दी सर्विस. सबसे ज़्यादा वो उस सर्विस में डील करता है. देन क्वालिफिकेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन हो, बट व्हेन इट्स कम्स टू दी प्रोफेशनली येस यू नीड सम काइंड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड अ ट्रेनिंग आर कंपलसरी, क्योंकि ये आपकी फील्ड है और उस फील्ड को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए आपको उसके बारे में एक गुड ग्लांस ऑफ नॉलेज होनी चाहिए. सो दैट्स कम्स इन टू दी प्रोफेशंस.
देन इन्वेस्टमेंट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स द वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. हमारे अगर हम बिजनेस में हमारी बात करते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड होती है. जिस तरीके का बिजनेस है उस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होंगी. बिजनेस अगर बहुत बड़ा है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, बिजनेस अगर छोटा है तो छोटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी. Then a professional has also to be invest some money to establish an office for rendering the professional services. So in that case, yes, आपके प्रोफेशनल को सर्विस रेंडर करने के लिए दे नीड वन ऑफिस. पर उसके बाद तो उन्हीं की स्किल्स हैं, उन्हीं की नॉलेज है, उन्हीं का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर. अगर डॉक्टर की बात करते हैं, नीड टू ओपन द क्लिनिक ओनली. उसके बाद जितनी भी ग्रोथ एस्पेक्ट्स अराइज होंगे वो उसकी खुद की स्किल्स, खुद की एक्सपीरियंस, खुद की एबिलिटीज़, खुद की नॉलेज से अराइज होंगे. सो दैट इज़ दी वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट. देन इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, अगर रिवॉर्ड की बात करें, बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट, अ प्रोफेशनल अर्न फी एंड एम्प्लॉयज़ अर्न सैलरी. अगर हम इस तरीके से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय होता है वो अपने काम करने की, या जिसको एक ये स्पेशलाइज टास्क मिलता है जस्ट टू परफॉर्म द स्पेशली प्रोफेशनल्स अर्नर्स, तो उस केस के अंदर प्रोफेशनल अर्नर्स बेसिकली डील विद द फीस, वो फीस पर डील करते हैं. जबकि बिजनेसमैन होते हैं वो एक्चुअली प्रॉफिट जनरेट करते हैं. एंड देन ट्रांसफरेबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफरेबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट के अंदर इन अ बिजनेस ट्रांसफर ऑफ एन ओनरशिप इज पॉसिबल. इन पर्सनल इट इज not possible to transfer the ownership interest. That is very obvious. अगर तो आप सिंगल बिजनेस के अंदर हैं, आपका खुद का प्रोफेशन है, तो उस केस के अंदर इट इज़ ईजी टू शिफ्ट योर ओनरशिप. जैसे कि कंपनीज अपनी गुडविल को सेल्ड आउट कर देती हैं, तो ओनरशिप ऑफ पोसेशन दैट्स कम्स इनटू योर transferabilities of interest for the business side. But when it comes to the ownership point of view or the sales aspect point of view, तो उसके लिए you need to be transfer yourself. And yes, at the same time professions की बात करते हैं, तो profession में that's very obvious कि उसमें आपको किसी भी तरीके की अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास अगर पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट अच्छा कर रहा है. इन दैट टर्म्स वो अपनी स्किल्स को शिफ्ट नहीं कर सकता है, तो वो उसी की स्किल्स ना, तो दिस इज़ नॉट शिफ्टेबल और ट्रांसफरेबल. ना नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी नेचर को डिफाइन करते हैं. नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर सबसे पहला है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस. दैट्स वेरी ऑब्वियस. हमारा जो बिजनेस है वो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर डील कर रहा है. सेकेंड, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. there is always an exchange process between the employees and buyers. हमेशा किसी ना किसी तरीके का exchange process होता है. rather than giving the exchange process, ये बोल सकते हैं कि this is the gap between or exchange between the two scenarios, two extreme scenarios. हमारे consumers और business के बीच में होने वाले किसी भी तरीके की exchange activities को हम exchange process बोलते हैं. So yes, exchange process से ज़रूरी है उसकी production करना. अगर एक good properly produce नहीं हो रहा है, तो वो आगे properly further exchange कैसे होगा अपने consumer के साथ. तो in that case हमें इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए. Third चीज़ which needs to be understand, that is रेगुलेटरी एंड कंटिन्यूटी इन डीलिंग. यानी कि आप जब अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि आप उतने ही ज़्यादा कॉन्टीन्यूअस डीलिंग के अंदर आते रहें, उनको नया नया कुछ ना कुछ कॉन्टीन्यूअस कुछ ना कुछ आप देते रहें. देन अनसर्टेनिटीज़ ऑफ रिस्क. अनसर्टेनिटीज़ ऑफ रिस्क इन द सेंस दैट व्हेन देयर इज ऑलवेज अ सर्टेनिटीज़. हम लोग फ्यूचर फोरकास्ट नहीं करते, बट येस अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो इज in business it is very much essential to go through with the future forecasting. So in that sense we going to know about the uncertainties or risk, कि हमारे uncertainties क्या हैं और हमारे risk क्या हैं. Then profit motives. Profit motive is basically those concept जहाँ पर आप अपने actually profit margins को maintain करने का काम करते हो. that comes into the profit motive. Now the scope of so now yes,
वी वर वाइंडिंग अप फॉर द टुडेज सेशन. आज के सेशन में हम इतना ही स्टडी करेंगे. इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, दैट टॉपिक लाइक द स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, द एडवांटेजेस और द फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जितने भी हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. फॉर टुडेज सेशन, यस, थैंक यू सो मच.